हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त लविशा खद्दार और मैं लेके आऊँ बड़े ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के लिए। तो थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द कोलकाता गैंग रेप केस. दिस incident took place on 9th of August. Momita Devnath, a second-year postgraduate student and a trainee doctor of RG Kar Medical College, who was raped and murdered brutally by Sanjay Roy, a civic volunteer, a 31 years old guy. This case was handed over to the CBI on 14th of August, Wednesday morning. Momita had watched the Olympics with her colleagues, the Neeraj Chopra javelin throw performance, at 2:30 a.m. Before that, she was talking on a call with her parents at 11 p.m. As she was feeling really tired, she went to the seminar hall and wrapped herself in a red blanket and slept on a blue carpet when the reportedly drunk man entered. This civil volunteer, Sujay Roy, attacked her. A brutal blow caused shards of glass from her spectacles which broke and entered her eyes. Injuries to the head were also reported as the accused slammed the deceased head against the wall. While banging her head against the wall, the accused reportedly covered her mouth with pressure, which led to the injury marks on her victim's face. 150 grams of semen was found in her body. One man can only have 15 grams. Just think, it can be 8 to 10 men. Yes, it is a gang rape. This incident happened during the time of 3 to 4 am. She was working. Yes, she was on a duty, guys. Roy has also confessed his previous violent behavior towards his mother, sister, and wife. Police sources said that the accused mother-in-law has previously filed a complaint against him at Kalighat police station for physically abusing his wife. As per the CCTV camera of RG Kar Medical College, Roy was entering the building from the emergency side. He was wearing a Bluetooth device around his neck. However, after 40 minutes, when he left the building, the earphone was missing. Investigators discovered the device near the victim's body and found it was paired with Roy's cell phone, which linked him to the crime. Dr. Sandeep Ghosh, the principal of the college, who retires himself after this incident. আমি এরকম কিছু বলিনি যে একজন পুলিশ তার दायित्व আছে पुलिस को आप रिजाइन दिया सर, इसका कारण सर इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण सर एक जो लड़की हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स इट। आप लोगों को पता है, ये इंसिडेंट होने के बाद ना सोसाइटी का ऐसा थॉट बन चुका है कि लोग, अगर हम लड़कियां अगर काम भी करें एकदम लेट नाइट्स, तो हमारी ही गलती है, हमारे पेरेंट्स की गलती है, हमारे कल्चर की गलती है। पेरेंट्स ने उसकी लड़की को संभाला भी नहीं कि उसको बताया भी नहीं कि इतना लेट काम नहीं करना चाहिए, तुम सेफ़ नहीं हो, तुम्हारे साथ अभी ये होने वाला है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, रोका टोका नहीं अपने बच्चे को। गलती पेरेंट्स की है, यही सोसाइटी चाहती है। पेरेंट्स पे ब्लेम डालो, लड़की पे ब्लेम डालो कि लड़की का कैरेक्टर ख़राब है, लड़की इतने इतने लड़कों के साथ घूम रही है, इतने उसके मेल फ्रेंड्स है, इसलिए उसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये होना ही था। यू नो, आफ्टर दिस इंसिडेंट, अ गर्ल नेम अंकिता बौरी, अ स्टूडेंट ऑफ Burdwan University of West Bengal, she was returning home and after taking part in the march to seek the justice for Dr. Momita, she was raped and brutally murdered. The media is still silent. This is what we get as a result of seeking justice. This is the society we are living. Really? कुछ बच्चों का बचपन से यही थॉट रहता है कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, लोगों की जान बचाएंगे, पर उनकी जान का क्या? उनकी जान कौन बचाएगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? Mamata Banerjee, she was first taking a stand, she was first supporting this case, she was making sure that कि इस केस में जितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा सके ले जाएंगे, लेकिन अभी वो पलट गई है। अभी रिसेंट एक वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि वो लड़की तो वापस नहीं आएगी, इसलिए उनकी फैमिली को हेल्प करने के लिए 10 लाख दे दिया जाएगा। दिस इज़ द हेल्प वी नीडेड? नो? येस, इट इज़ अ बिग नो। इट्स नॉट अ क्राइम टू बी अ डॉक्टर और एनी प्रोफेशन यू वुड लाइक टू गो फर्दर फॉर। इट्स अ क्राइम टू हैव अ होम in this country. The CM of the West Bengal, Mamata Banerjee, statements were given by her on previous rape cases are as follows. The girl was characterless. She is a woman and has a body, so it's okay to happen sometimes. Just a small incident, trying to ruin the government image. Kids will have some fun like this and that's absolutely fine. And last, she had love affairs and was pregnant, as well as
शी डाइड कॉज ऑफ द सिकनेस। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या टीचर हो या कोई एक्ट्रेस हो या कोई एक मामूली इंसान, रेप तो हर एक का होता है। ना उम्र देखी जाती है, ना उसका बैकग्राउंड। नाउ पीपल सेज दैट वुमेन आर नॉट सेफ इन देयर वर्क प्लेस। सेफ्टी हमें जहाँ चाहिए वहाँ नहीं मिल रही है। एंड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं, बाहर भी नहीं। हम वुमेन घर पे भी सेफ नहीं होते। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। हम सबको जज तो नहीं कर सकते। कौन क्या कब क्या फेस कर रहा है हमें नहीं पता। एक 3 months ओल्ड बेबी का भी रेप होता है, एक 80 साल बुरी औरत का भी रेप होता है। चाहे वो कोई भी कपड़ों में हो, सलवार सूट में हो या बुरखे में हो, रेप उसका फिर भी होता है। इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स नॉट अबाउट कास्ट, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन और इट्स नॉट अबाउट अ ड्रेस। इट्स अबाउट द मेंटली थिंक ऑफ द पीपल हु आर डूइंग दिस क्राइम्स। क्या आप ये फोटो देख पा रहे हो? कोई कैसे इसको कह सकते हैं कि ये सुसाइड है? ये केस को बंद करने के लिए, ताकि पॉलिटिकल इमेज भी ख़राब ना हो, ना उस स्टेट का नाम ख़राब हो। मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं बंगाली हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं अपने स्टेट से शर्मिंदा हूँ। आई एम अ प्राउड ऑफ इट। बट ये दरिंदों लोगों की वजह से हमारा पूरा देश का नाम ख़राब है। ज़रूरी नहीं कि बस एक स्टेट में हुआ है तो वो स्टेट सेफ़ नहीं है, पूरा देश सेफ़ नहीं है। चेन्नई में बहन के साथ बलात्कार हुआ तो भाई ने बलात्कार करने वाले आरोपी का सर काट के पुलिस स्टेशन ले गया। शेर को सलाम है। हर जगह लोग यही प्रोसेस शुरू कर दे तो हरामियों की औकात पता लग जाएगी। ऐसा ही करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। सैल्यूट भाई। देयर आर सम पीपल हु आर कमेंटिंग लाइक दिस, लाइक काश मैं भी उन 7-8 लोगों में होता। क्या मस्त माल है यार। हाउ कैन यू मेक 10 of 10 पीपल हैप्पी? एक साथ 8 लड़कों को फर्क कर दिया। लिटरली, इज दिस अ जोक टू यू गाइज? प्लीज ओपन योर आइज, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी पढ़ तो रही है, बेटी आगे बढ़ तो रही है, क्या बेटी बच रही है? नहीं। एजुकेट योर सन्स। एजुकेट योर सन्स ऑन हाउ टू ट्रीट अदर वुमेन। एजुकेट योर सन्स टू मेक द अदर वुमेन फील सेफ। एजुकेट योर सन्स टू रिस्पेक्ट वुमेन्स। बेटी घर की हो या बाहर की, इज्जत सबको मिलनी चाहिए। इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगा। पता नहीं हमारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ना किसने सिखाया, वरना नारी के सम्मान में तो महाभारत और लंका दहन की संस्कृति थी हमारी। डू यू रिमेंबर आसिफा द स्मॉल गर्ल, देन साक्षी रेड्डी, देन डॉक्टर प्रियंका, देन जुंको फुरटो एंड नाउ मौमिता देवनाथ। और भी बहुत सारे केसेस हैं जो फाइल नहीं होते। निर्भया केस को 12 साल हो चुके हैं। निर्भया की माँ ने ये कहा था कि जुर्म जीत गया और मैं हार गई। लोग आज भी जस्टिस पाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्चिंग कर रहे हैं। क्या इससे कुछ हो पा रहा है? हमारा इंडिया का लॉ कैसा है कि किसी ने अगर रेप या मर्डर किया, वो जेल जाएगा, फिर उसको बेल भी मिल जाएगी, फिर वो वापस आ जाएगा और वो वापस वही गलती दोहराएगा। बहुत ही रेयर लोगों को हैंग किया है या फिर एनकाउंटर किया है जब वो भागने की कोशिश करते हैं, वरना मोस्टली पैसे दे के केस को क्लोज कर दो। पता है बाकी देशों की पनिशमेंट बहुत ही हार्ड होती है। चाइना में डेथ डिक्लेयर किया जाता है, सऊदी अराबिया में पब्लिक के सामने हैंग किया जाता है, नॉर्थ कोरिया में इंसान को जलाया दिया जाता है, अफगानिस्तान में भी हैंग किया जाता है, इसराइल में भी हैंग किया जाता है। एंड द यूएई, यू नो द यूएई लॉ, इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। एंड देन आता है हमारा इंडिया का लॉ, द एंटी रेप बिल ऑफ 2013 एक्ट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ जस्ट 14 ईयर्स। फिर उसको छोड़ दो, उसको बेल में भी छोड़ दो उसको, या फिर 14 साल की जेल होने के बाद छोड़ दो, ताकि वो वही चीज़ बार बार दोहराता रहे। रिपीटेडली ये होता रहेगा। गाइस, रेप होने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? ये सोसाइटी के जो मेंटल थॉट्स है। हम जब चाहते हैं कि सोसाइटी हमें सपोर्ट करे, हमें हर चीज़ में आगे बढ़ाए, इन लोग वही चीज़ में हमें धक्कल देते, दबा देते हैं। A 3-year-old girl got raped. A 31-year-old girl got raped. A 75-year-old woman got raped. Doctor's coat cannot save you from getting raped. Wearing saris cannot save you from getting raped. Wearing salwar kameez cannot save you from getting raped. Wearing burqa cannot save you from getting raped. And the last not the least, wearing short dress cannot save you from getting raped. Hospitals are unsafe. Mandirs are unsafe. Homes are unsafe. Any workplace is unsafe. Public transport are unsafe, and any public place is also unsafe. Your caste, religion, creed, color, body type, blood group, accent, culture, literally nothing
and not even the law itself can save you from getting raped. तो अब और कब तक? For how long will we keep going through the same cycle of heinous crimes before we all are left with nothing but just blood and disgust? As per the official statistic, हर 16 मिनट में एक रेप कमिट होता है and over 2.4 lakh rape cases are still pending for a justice. If you are educating your daughter about bad touch, then make sure that your son knows about it too. सबसे बड़ी रीज़न और कोई नहीं, हमारा लॉ ही है. जी हाँ, हमारा इंडिया लॉ बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ विक्टिम्स आर कीप गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर. देयर नीड्स टू बी सम पॉलिटिकल सेंसिटिविटी और अ जुडिशियल सेंसिटिविटी और स्पेशल कोड्स एंड ऑल्सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू बी एबल टू कंट्रोल द वर्सनिंग situations. Person's body, clothes or an appearance are not the invitation for the rape or any sexual violence. No one chooses to be raped. Even an infant or a disabled person are being raped. There is no justification for a rape. Rape is a both criminal and a violation of human rights. For prevention and control of these cases, the society, the people must be open-minded and educate both boys and girls to impart mutual respect and dignity. Also, let us work on where women are no longer held responsible for getting blamed for rape and protect their rights and be protected. जब अंत भला हो तभी सब भला होता है. जय हिंद.